Good morning, children. Welcome to the online classes of Shivaji Performance Tuitions. In this class, I will teach you chapter number 16, direct and indirect speech. Direct and indirect speech के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है? Direct speech क्या होती है? What is the direct speech? Direct speech जो होती है, इसमें कोई चीज कही जाती है, जैसे कि हम डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करते हैं. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जैसे हमने राम से I am eating my lunch. राम ने कहा कि I am eating my lunch. तो ये क्या होगी? डायरेक्ट स्पीच होगी. इसमें फर्स्ट पार्ट होता है जो बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. ये जो पार्ट होता है आपका, ये होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब. ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब. और जो आपका ये वाला पार्ट होता है, ये आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच. इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है बच्चों? ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और दिस पार्ट इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग. डायरेक्ट स्पीच होती क्या है? व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? व्हेन द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर सेड. जब एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर जो हैं दे आर सेड, इट इज नोन एज द डायरेक्ट स्पीच. क्या बोला जाता है? डायरेक्ट स्पीच. तो इन दिस सेंटेंस राम said I am eating my lunch. Ram said I am eating my lunch. So this is a direct speech. The actual words of the speaker are mentioned. The actual words of the speaker are mentioned. So this is a direct speech. ये क्या है? Direct speech. Now I will change to indirect. I will change to indirect. What do we write? Ram said that he was eating his lunch. Ram said that he was eating his lunch. This is an indirect speech. ये indirect speech है. In this speech, the actual words of the speaker are not mentioned. It is said by someone else. So it is an indirect speech. ये क्या होता है? Indirect speech होती है. Ram said that he was eating his lunch. This is an indirect speech. ये क्या है? Indirect speech है. ठीक है बच्चों? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंशिएट करेंगे. How I will differentiate between direct speech and indirect speech. Now you will study. There are many things in this book, not only this. Verbs in the present tense are changed to past tense. इसमें जो present tense के वर्ड हैं दिए हुए थे, ये past tense में चेंज हुए हैं. And जगह हमने यहाँ पे was का इस्तेमाल किया है. इसका इस्तेमाल किया है, was का इस्तेमाल किया है. और I की जगह हमने he का इस्तेमाल किया है. इसका इस्तेमाल किया है, he का इस्तेमाल किया है. My की जगह हमने his का इस्तेमाल किया है. किसका इस्तेमाल किया है? his का. So these are some of the necessary changes we make while we are doing from direct to indirect speech. When we are changing from direct to indirect speech, these are some of the necessary changes we make. ये necessary changes ऐसे हैं जो हम लोग करते हैं. क्या करते हैं? ऐसे करते हैं. ठीक है बच्चों? So I hope it is clear to you now. Now in the book it is given in the other sentences the word said is reporting verb. तो said हमने यहाँ पे आपको वर्ड दिया दिखाया था अभी, वो क्या था? रिपोर्टिंग वर्ब. जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होता है, लाइक रवि said. So Ravi said in the past tense. This is what this is. Past tense. ये क्या है? ये past tense है. तो यहाँ पे आपने लिखा I have done my
work. I have done my work. So this is the reported verb, reporting verb written in the past tense. So this tense will also change. ये tense जो है वो भी change होता है. ठीक है, जैसे आपने कहा नीना said to प्रिया, नीना ने प्रिया से कहा you are not driving carefully, you are not driving carefully. तो नीना told प्रिया that she was not driving carefully. नीना told प्रिया that she was not driving carefully, that she was not driving carefully. ठीक है बच्चों, पहले हम ये देख लेते हैं जो सेंटेंस में लिखा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं. रवि said that he had done his work. Ravi said that he had done his work. So now in this sentence you see the necessary changes. What are the necessary changes? Ravi said, after that we have put that. First word is that. We have put that now, and after that I changes to he, क्योंकि वो अपने लिए कह रहा है. So we will change I to he. Have will be changed to had. Have जो है वो present tense में इस्तेमाल होता है perfect में, not to change to had, because when the reporting verb is in the past tense, the tense of the reported speech also changes. The tense of the reported speech also changes. Now I have हो गया he had done his work. This is the answer of the sentence. Now some more examples I will tell you, children. Geeta said to Shilpa, I was working for them at that time. Geeta said to Shilpa, I was working for them at that time. I was working for them at that time. I was working for them at that time. Now in this sentence there are two persons. In this sentence there are two persons, Geeta and Shilpa. There are two persons, Geeta and Shilpa, and what is it? Said to. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Said to लिखा हुआ है. Geeta said to Shilpa, I was working for them at that time. I was working for them at that time. ये हो जाएगा. ठीक है बच्चों. तो said to के लिए हम जनरली इस्तेमाल क्या करते हैं? Said to के लिए we will use told. What will say? Told. जब said to लगा होता है जनरली, so in the indirect speech we will change it to told. We will change it to told. हम told को change कर लेते हैं. So what we will do? Geeta told Shilpa. Geeta told Shilpa. Geeta told Shilpa that she had been working for them. That she had been working for them. She had been working for them at that time. At that time. She had been working for them at that time. So this is a sentence. Geeta told Shilpa that she had been working for them at that time. At that time. So this is the sentence, and this is the indirect part of the sentence. This is the indirect part of the sentence. Geeta told Shilpa that she had been working for them at that time. क्या हो जाएगा? At that time. So I hope you have understood this. तो नेसेसरी चेंजेस क्या होते हैं? जब लोग क्या
करते हैं सेंटेंसेस में। देखिए, when the reporting verb is in the reporting verb is in the past tense, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो है पास्ट टेंस में होता है, the changes are, तो चेंजेस क्या होते हैं ऐसा हम बताएंगे, प्रेजेंट indefinite changes to past indefinite। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू past continuous, प्रेजेंट continuous जो है हमारा past continuous में चेंज हो जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट continuous it changes to continuous, past perfect continuous। तो ये प्रेजेंट के चार पार्ट हैं। प्रेजेंट के चार पार्ट कैसे चेंज होते हैं हमने आपको बताया है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, जब भी बनाते हैं उसको ऐसे ही लिखते हैं और ऐसे ही इसको फ्रेम करते हैं। इसी तरह पास्ट में जो चेंजेस होते हैं, जैसे आपका पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर दिया है पास्ट परफेक्ट अगर दिया हुआ है तो उसका नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट बिकम्स नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं किया जाता, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। और ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 16 जो है ये दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, पेज नंबर 113 ये दिया हुआ है, चेंजेस इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या चेंज होते हैं, जैसे दिया हुआ है, देखिए, read these sentences carefully and see how the pronouns change while changing the speech। कैसे प्रोनाउन चेंज होता है while changing the speech। He said to Meeta, I am getting late। उसने मीता से कहा I am getting late। क्या बन जाएगा, He told Meeta that he was getting late। He told Meeta that he was getting late, कि वो लेट हो रहा है। She said to him, you will help me। She said to him, you will help me। क्या हो जाएगा, she told him that he would help her, that he would help her। इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब आप उनसे गुजरेंगे तो आपको और एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी और समझ में आने लगेगा। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग सेंटेंसेस को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, कैसे सेंटेंस को बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीचेस में, और क्या करते हैं नेसेसरी चेंजेस होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब
तो आई होप आपको इस वीडियो में इतना समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज भी दी हुई है, ये आप कर सकते हैं रिव्यू के लिए। जैसे चेंज द स्पीच ऑफ द स्टेटमेंट्स, फिल इन द गैप्स। अबे सेड टू सुसान आई हैव बीन इलेक्टेड एज द हेड बॉय। क्या हो जाएगा? अबे टोल्ड सुसान दैट ही had been elected as the head boy. He had been elected as the head boy. ये पहला आपका सेंटेंस दिया हुआ है पेज नंबर 113 पे, ठीक है, नंबर 1 पार्ट। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। अबे सेड टू सुसान आई हैव बीन इलेक्टेड एज द हेड बॉय। अबे ने सुसान से कहा दैट आई हैव बीन इलेक्टेड एज द हेड बॉय। क्या हो जाएगा? अबे टोल्ड सुसान दैट ही हैड बीन इलेक्टेड एज द हेड बॉय, दैट ही हैड बीन इलेक्टेड एज द हेड बॉय, ठीक है, कि वो हेड बॉय की तरह चुन लिया गया। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखिए पेज नंबर 114 पे द सेंटेंस बिगिंस विद WH फैमिली। WH फैमिली से अगर कोई क्वेश्चन बिगिन हो रहा है तो उसमें भी हम लोग नेसेसरी चेंजेस करते हैं। क्या करते हैं? नेसेसरी चेंजेस करते हैं। These begins with WH। किससे बिगिन होता है? WH से बिगिन होता है। किससे बिगिन होता है? WH से बिगिन होता है, ठीक है। मॉडल्स कैन, कुड, विल, वुड, शैल और शुड। मॉडल्स आपके क्या होते हैं? कैन होता है, कुड होता है, विल होता है, वुड होता है, शैल होता है या शुड होता है। ये आपके मॉडल्स होते हैं, ठीक है। What, when, where, why, who, whom, whose and how। The baby of the WH family, ठीक है। ये सारी जो है WH फैमिली के पार्ट हैं, इसमें WH से स्टार्ट हुआ जा रहा है, ठीक है। when हो गया, what हो गया, where हो गया, why हो गया। जैसे एक एग्जांपल आपको दें, रवि said to the stranger where do you live, ठीक है। रवि said to the stranger where do you live। रवि ने स्ट्रेंजर से कहा कि तुम कहाँ रहते हो। रवि ने स्ट्रेंजर से कहा कि तुम कहाँ रहते हो। तो उसमें क्या बनेगा? said to की जगह यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? asked। क्या लगाएंगे? asked, मतलब पूछा। क्या बनेगा? रवि asked the stranger, Ravi asked the stranger where he lived। रवि asked the stranger where he lived। रवि ने stranger से पूछा कि वो कहाँ रहता। तो हमने यहाँ पास को चेंज कर दिया, लिव की जगह हमने यहाँ पे लिव का इस्तेमाल किया और वेयर वैसे यूज किया है और डू यू की जगह ही इस्तेमाल कर दिया। क्या इस्तेमाल कर दिया? ही। तो आई होप आपको डायरेक्टली समझ में आ गई होगी ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस था कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने वेयर WH का हमने वेयर ही इस्तेमाल किया है, बस उसके आगे हमने ही लिव लगा दिया। क्या लगा दिया है? ही लिव। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी हम आपका PDF बना के इसका भेजेंगे। पेज नंबर 115 आप देख सकते हैं, इसमें भी एक चीजें दी हुई हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे डिफरेंशिएट किया जा रहा है। आई को हम लोग जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो आई का ही और शी हो जाता है, माई का हिज हर हो जाता है, योर का हिज हर देयर हो जाता है, आवर का देयर या आउट हो जाता आवर हो जाता है, वी का दे हो जाता है, अस का देम हो जाता है, ठीक है। ये आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको कर सकते हैं। एक सेंटेंस आपका दिया है पेज नंबर 115 पे। पुनीत सेड टू हिज वाइफ इज इट रेनिंग। पुनीत ने अपनी वाइफ से कहा कि बारिश हो रही है क्या। तो क्या हो जाएगा? पुनीत आस्क्ड हिज वाइफ इफ इट वाज रेनिंग। क्या बनेगा? पुनीत आस्क्ड हिज वाइफ if it was raining कि बारिश हो रही है। यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, इस वाक्य में क्या
थी, पुनीत said to his wife, पुनीत said to his wife, is it raining? पुनीत said to his wife, is it raining? ये सवाल पूछा है, हमने क्वेश्चन मार्क भी लगाए। जब बनेगा तो क्या बनेगा? पुनीत asked his wife, पुनीत ने अपनी वाइफ से पूछा, पुनीत asked his wife if it was raining। अब यहाँ पे हमने if का इस्तेमाल किया है, इसका इस्तेमाल किया है, if का इस्तेमाल किया है। if का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई कंडीशन दी गई होती है। When you are asking a condition, you will use if। तो लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? if का। तो पुनीत asked his wife if it, और उसके बाद प्रेजेंट में चेंज कर देंगे पास्ट में was और raining। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। इस वीडियो में हम आज नहीं रखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे।